70% अकाउंट 70 है पक्का, सच में 70 है। नहीं बोला पास मर क्यों है? तू एकलो जैन आहे, तू म्हणे की जे सूचे लास्ट क्लास में कमेंट मार पास हो जाए फिर जो अकाउंट 91 बगल में टॉपर बैठा, मेरा रिजल्ट बाकी है ना, बगल में टॉपर बैठा, मैं तो हॉस्पिटल में था, दिया ना पेपर, और मेरा एग्जाम के बाद तो हॉस्पिटलाइज हुआ, याद है मुझे, अकाउंट्स के बाद हुआ है। मार्क्स आना चाहिए, करना बची रहेगी। ओवरऑल 80 प्लस, आई थिंक मोस्ट ऑफ योर 80 प्लस। NMMBC कौन 80% के नीचे, NMMBC 80 के नीचे थोड़ा 77 ही है ना, नॉट 80 के ऊपर है। रुद्र 77 ना, 74 77 है अकाउंट। चलो चलो नोट्स लिया है ना, अभी नोट्स मिलाना सबको। नोट्स में नाम लिख देना अपना, राइट योर नेम ऑन नोट्स, पहले काम करो। एक पब्लिक नोट्स भूल कर जाता है इधर। पेज नंबर 39। चलो क्वाइट डाउन, guys, please be quiet. See, we haven't completed bank repo statement yet. Bank repo statement hasn't been completed. Okay, there are 5 to 6 sums which are still to be done. But if you might have read the question properly, there was something specified in the question which is called as adjusted cash book. Okay, adjusted cash book वाले sums हमने नहीं किए, BRS, बाकी सब किया हुआ है। जो भी बचे कुछ सम्स है ना, 5-6 सम्स होंगे, आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, प्रिपेयर adjusted cash book after making adjustments in cash book. Reason for not doing those sums is we'll be first doing this chapter called rectification of errors, because that adjusted cash book is nothing but rectified cash book. It is nothing but rectified cash book. So first we'll complete this chapter, rectification of errors, that you are thorough with rectification, then it will be very easy for you to rectify the cash book and make the BRS. Okay. So starting with the new topic, that is rectification of errors. Tell me, what do you mean by errors? Mistakes. If you split this chapter into 2 words, it is rectification of errors. So what are errors? Mistakes. And what is rectification? Correction. So basically we are correcting the mistakes. Okay. Now mistakes ऐसा चेकम चेक करके दूसरा एंट्री लिखना, that is not rectification. Okay, you cannot cancel out an entry.
So how are we going to rectify the mistakes? How are we going to correct the mistakes? अब ये mistakes जर्नल के स्टेज पे हो सकता है, जर्नल राइट है तो लेजर पोस्टिंग के वक्त हो सकता है, चलो जर्नल भी राइट है, पोस्टिंग भी राइट है, ट्रायल बैलेंस में लिखते वक्त हो सकता है, ट्रायल बैलेंस भी राइट है, फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त भी गड़बड़ हो सकता है, अनरिकॉर्डेड एंट्रीज, रेक्टिफाइड एंट्रीज, जो आप एडजस्टमेंट्स करते हो ना, a few of those adjustments are nothing but rectification. I told you, remember, adjustments are unrecorded transactions. Certain transactions are left on purpose and certain transactions are left by mistake. तो दोनों possibilities है वहां पे, ठीक है? So कहीं पर भी mistake हो सकता है, and how are we going to rectify the mistakes? By passing a separate journal entry. That separate journal entry is called rectified entry. We'll pass a rectified entry, separate journal entry pass करके we will rectify the mistakes. Okay, I'll give you a simple example. All of you have done rectification 11th standard, right? So suppose machinery is purchased for cash 20,000 rupees. It was wrongly debited to furniture. So what is the correct entry for buying machinery? Machinery to cash. आपने गलती कर दी क्या? Furniture to cash. This is the right part. This is the wrong part. So what has happened? Instead of debiting machine, you have debited furniture. How to rectify the entry? Wrong reverse correct rectified करते थे, तो बेसिकली wrong को उल्टा करते थे, right को include करते थे, दोनों को जोड़ते थे, that's your rectified entry. So it is machinery to furniture. Machinery to furniture, that is your rectified entry. Is this clear? Machinery to furniture, that is your rectified entry. Now tell me, see, rectification is a two-step process. Rectification is a two-step process. Rectification is a two-step process. What are the two steps involved? Cancellation of wrong and inclusion of right. Cancellation of wrong and inclusion of right. खाली wrong को cancel करके काम बनने वाला नहीं है. मतलब ये machine to cash का मैं suppose cash to machine कर दूंगा, तो मैंने उल्टा किया, तो ओरिजिनल एंट्री 0 हो गई. तो कैंसिलेशन ऑफ रॉन्ग इज नॉट एक्चुअली द रेक्टिफिकेशन पार्ट. इट इन्वॉल्व्स टू थिंग्स, कैंसिलेशन ऑफ रॉन्ग एंड इंक्लूजन ऑफ राइट. जो रॉन्ग है उसको गलत किया उसको हटाओ, और जो सही किया उसको लाओ. दोनों चीज होना चाहिए, तब जाके प्रॉपर रेक्टिफिकेशन खत्म होगा. तो हाउ डू यू कैंसिल अ रॉन्ग? उल्टा करो. डेबिट को क्रेडिट दे दो, क्रेडिट को डेबिट दे दो. उल्टा करो, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट. दैट इज कैंसिलेशन ऑफ रॉन्ग. हाउ डू यू कैंसिल अ रॉन्ग इन अकाउंटिंग? डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट. एंड हाउ डू यू इंक्लूड द राइट? डेबिट को डेबिट और क्रेडिट को क्रेडिट. तो मैंने क्या किया, बेसिकली ये रॉन्ग था, इसको उल्टा किया. इसको उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा? कैश टू मशीन. कैश टू मशीन, ये रॉन्ग का उल्टा हो गया, एंड ये राइट, सॉरी ये रॉन्ग का उल्टा किया तो मेरे को मिला कैश टू फर्निचर. और ये राइट था, तो राइट प्लस रॉन्ग का उल्टा, दिस एंटायर एंट्री इज कॉल्ड रेक्टिफाइड. इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो कैश कैश कट हो जाता है. यू आर लेफ्ट विद मशीन टू फर्निचर. तो ये जो मशीन सही था उसको लेके आया बाय गिविंग अ डेबिट, और ये जो गलत हुआ उसको रिवर्स किया बाय गिविंग अ क्रेडिट. समझा? So basically what is rectification? Cancellation of wrong and inclusion of right. How do you cancel a wrong? ओरिजिनल को रिवर्स करो. जो भी रॉन्ग हुआ उसको कैसे कैंसिल करोगे? बाय गिविंग इट अ रिवर्स इफेक्ट. डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट. एंड जो सही हुआ है उसको एक्चुअल इफेक्ट दे दो, डेबिट को डेबिट, क्रेडिट को क्रेडिट. बस ये दोनों को जोड़ दिया तो मिल गया आपको रेक्टिफाइड एंट्री. व्हाई देयर इज नो कैश इन्वॉल्वड इन द रेक्टिफाइड एंट्री? राइट एट द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ. उसको टच करने की जरूरत थी नहीं. गलत क्या हुआ था? फर्नीचर डेबिट. सही क्या था? मशीनरी का डेबिट. तो इसको क्रेडिट दिया, इसको ओरिजिनल डेबिट दिया, रेक्टिफाई हो गया. बस यही क्रक्स है. दिस इज द कोर ऑफ रेक्टिफिकेशन.
If this thing you know, you can rectify any diamond. Got it? How do you rectify? Cancelling the wrong and including the right. ये कंसेप्ट बैठ गया ना दिमाग में, तो ये रॉन्ग रिवर्स करेक्ट ये मसाला नहीं भी किया, डायरेक्टली रेक्टिफाइड एंट्री कर दिया तो भी चलेगा. ओके, आपको सीए फाउंडेशन में रॉन्ग रिवर्स करेक्ट का कोई मायना नहीं है. इवन इफ यू डोंट शो दैट वर्किंग नोट, इट इज जस्ट लाइक एरोज ऑफ बीआरएस. इवन इफ यू डोंट शो दैट वर्किंग नोट, इट इज एब्सोल्युटली, समझा? I'll do one more example. Rent paid was debited to building account. तो रेंट को डेबिट करना था, गलती से कर दिया बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को रिवर्स करो, रेंट को सही डेबिट लेके आओ. व्हाट्स योर रेक्टिफाइड? यही चीज हम लोग रॉन्ग रिवर्स करेक्ट रेक्टिफाइड करके लाते हैं. सॉर्टेड. अभी सुनो ध्यान से, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस सबका सेम है, कैंसिलेशन ऑफ रॉन्ग एंड इंक्लूजन ऑफ राइट. अभी लेट्स अंडरस्टैंड दिस. What are the types of errors which you are going to rectify? तो ये 11 में भी हमने देखे थे. Broadly there are two types of errors. एक तो होता है error of principle और एक होता है clerical errors. Clerical are further classified as omission, commission and compensating errors. बराबर है? तो what are error of principles? याद है किसी को error of principle? When you mix up your capital nature items with your revenue nature item. Now you know very well what is capital, what is revenue, what is long term, what is short term. So if you do a bhelpuri of long term with short term, that's called error of principle, which is present day में the most important error, because 85-90% of the frauds they revolve around this error. See, error is error till the time it is committed unintentionally. The moment you do it intentionally, it becomes a fraud. So ये error न होके fraud होता है, जानबूझ के किया हुआ error होता है. Error नहीं बोल सकते, उसको बोलते हैं fraud. Yes, Pratham. So error of principle, when you commit an error intentionally, that's a fraud. So majority of the frauds revolve around this error. Error of principle. क्या करता है error of principle? दो जगह से आपके बुक्स को अटैक करता है. पहले आपका प्रॉफिट को हिला डालेगा, चेंज कर डालेगा, एंड आपका बैलेंस शीट वैल्यू हिला डालेगा, वो भी चेंज कर डालेगा. या तो प्रॉफिट बढ़ाएगा, बैलेंस शीट को ग्लॉसी ग्लॉसी दिखाएगा, या तो उल्टा प्रॉफिट को कम और बैलेंस शीट को श्रिंक कर. So that is what is error of principle. Long term item mixed with short term. Furniture taken as an expense. से रिलायंस के कंपनी में लैपटॉप्स होते हैं, तो लैपटॉप की सर्विसिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है. 50 हजारों लैपटॉप है. एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में एक सर्विस हुई, 50 लाख का बिल बना. अब 50 लाख एक्चुअली सर्विस एक्सपेंस है, उसको डालना चाहिए एक्सपेंस में, उसने बना दिया एसेट. अब सीन क्या हुआ, आपने एक्सपेंस दिखाया नहीं तो प्रॉफिट बढ़ गए, और प्रॉफिट बढ़ गए तो आपके लायबिलिटी में कैपिटल बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गए, वो तो रिजर्व में दिखाते, चलो रिजर्व बढ़ गए, और एसेट साइड एसेट भी बढ़ गया क्योंकि वो एसेट में दिखा दिया उसने वो चीज. तो क्या हुआ यहाँ पे, एक तो प्रॉफिट घटा और ऊपर से एसेट वैल्यू बढ़ गया, तो बैलेंस शीट फूक गई, जो थी उससे ज्यादा वैल्यू दिख रही है. इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग. क्या बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग. जो है नहीं है, जो है नहीं, और फिर भी आप दिखावे से दिखा रहे हो अपनी बुक ज्यादा बल्कअप करके, दैट्स कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग. इसका ऑपोजिट हुआ सीक्रेट रिजर्व. सीक्रेट रिजर्व मतलब वही एग्जांपल हो, लैपटॉप से सर्विसिंग चार्जेस. लैपटॉप्स खरीदे थे 5 करोड़, रिलायंस ने लैपटॉप खरीदे 5 करोड़ के, एक्सपेंस के फॉर्म में दिखा दिया. एक्चुअली क्या दिखाना है, लेकिन राइट ऑफ कर दिया एक साथ एक्सपेंस करके. सही किया, गलत किया ऑब्वियसली. एसेट है तो लाइफ लंबी है, एक्सपेंस फ्यूचर में दिखाना है, थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करके. लेकिन 5 करोड़ का एसेट था, आपने क्या दिखा दिया, एक्सपेंस दिखा दिया. अब एक्सपेंस दिखाया तो प्रॉफिट कम हो गया, और बैलेंस शीट में से एक एसेट भी गुल हो गया, तो जितना था उससे क्या हो गया, कम हो गया. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सीक्रेट रिजर्व्स. दोनों ही इलीगल है. सी अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है, ट्रू एंड फेयर. जो है वो दिखाना है, ना अच्छा ना बुरा.
जैसा है वैसा डिपिक्ट करना है, ना अच्छा ना बुरा। तो ये दोनों एरर्स, जो अच्छा है या जो बुरा है, ये दोनों चीजें फ्रॉड किसके अराउंड रिवॉल्व होती हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। सो व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल? व्हेन यू मिक्स अप लॉन्ग टर्म आइटम्स विद शॉर्ट। आई विल गिव यू एग्जांपल्स। रेंट पेड was debited to machinery. Error of principle. Rent is an expense, machinery is an asset. Loan taken recorded as commission receipt. It's a liability shown as an income. Again an error of principle. Machinery purchase wrongly debited to trade expense. That is also an error of principle. Amount withdrawn by proprietor for personal use debited to miscellaneous expense. ड्रॉइंग्स का आपने एक्सपेंस बता दिया। ये जो तो काफी बिजनेस करते हैं छोटे लेवल पे टैक्स बचाने के लिए, लेकिन क्या घर पे पैसा है ड्रॉइंग्स, लेकिन दिखा देगा एक्सपेंस में। तो एक्सपेंस दिखावे तो आपका प्रॉफिट्स कम होता है, उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। समझ में आया? तो वापरा भी खुद ने पैसा और टैक्स भी बचा लिया। सो पर्सनल एक्सपेंस शोन एज बिजनेस एक्सपेंस, या फिर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स शोन एज इनकम. Cash received from debtors shown as income. Now debtor is a part of balance sheet and income is a part of P&L. That is also an error of principle. So whenever you mix up balance sheet nature items with revenue nature items, trading P&L items, it is said as error of principle. Have we got that? The second category is clerical errors. What are clerical errors? Silly mistakes. आपको अकाउंट्स बराबर से आता है, कंसेप्ट बराबर से आता है, लेकिन ओवरसाइट से मिस्टेक हो गया. That's called clerical. Clerical errors are further classified as error of omission, error of commission and compensating errors. Error of omission दो प्रकार के होते हैं. एक होता है complete omission, एक होता है partial omission. पता है आपको what is complete omission? क्या होता है complete omission? जब एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड complete omission, जर्नल में ही नहीं किया, that's complete omission. What is partial omission? जर्नल में किया लेकिन एक में पोस्ट किया, एक में नहीं किया. कैश टू रेंट है, कैश में किया, रेंट में नहीं किया, रेंट में किया, कैश में नहीं किया. फर्नीचर टू क्रेडिटर है, फर्नीचर में किया, क्रेडिटर में नहीं किया, क्रेडिटर में किया, फर्नीचर में नहीं किया, एक में पोस्ट किया, एक में नहीं किया. दैट्स कॉल्ड एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन. एरर ऑफ कमीशन. व्हाट इज एरर ऑफ कमीशन? किया लेकिन गलत किया. तो सर ये भी तो किया लेकिन गलत किया था, प्रिंसिपल भी तो किया लेकिन गलत किया था, लेकिन इट वॉज अ मिक्सअप ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू. कमीशन भी वही है, एरर ही है, बट इट शुड नॉट बी अ मिक्सअप ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू. कुछ भी गलत करो लेकिन इट शुड नॉट बी अ मिक्सअप ऑफ कैपिटल रेवेन्यू, देन इट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन. Three types of error of commission, three possibilities in error of commission. What are they? Wrong amount, wrong account, wrong side. What do you mean by wrong amount? Amount wrong लिखा. Rent to cash 10,000 का rent to cash 1 lakh कर दिया. Cash to rent 20,000 का cash to rent 2 lakh कर दिया. दोनों में amount wrong किया. या फिर cash to rent 20,000 था, cash में 20 लिखा, rent में 2 लिखा, बीच में डैश आ जाता है, सस्पेंस यूज करते हो. दैट इज ऑल्सो एन एरर ऑफ कमीशन. रॉन्ग अकाउंट करना था रेंट टू कैश 20, कर दिया इंटरेस्ट टू कैश 20. करना था कैश टू कमीशन 20,000, कर दिया कैश टू इंटरेस्ट 20,000. अकाउंट गलत यूज किया, बट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का गड़बड़. एंड तीसरा है रॉन्ग साइड. व्हाट इज रॉन्ग साइड? डेबिट का क्रेडिट. करना था रेंट टू कैश 20, कर दिया रेंट कैश टू डैश, या डैश टू कैश टू रेंट. दोनों को डेबिट या दोनों को क्रेडिट, या पूरा उल्टा कैश टू रेंट, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट. समझ आ रहा है? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रॉन्ग साइड. सो तीनों एरर ऑफ कमीशन. एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर, दे आर नो सेपरेट टाइप ऑफ एरर. ये कोई सेपरेट टाइप है ही नहीं. दो एरर हुए हैं सच दैट दे कैंसल आउट ईच अदर्स डेबिट एंड क्रेडिट, देन दे आर सेड टू बी compensating errors. Quite simple. So what are compensating errors? Two errors committed simultaneously such that their debits and credits are nullified. So for example, एक error हुआ है partial omission का.
पार्शियल ओमिशन का एग्जांपल हो, आपने रेंट पे किया है 20,000, तो कैश रेंट टू कैश 20,000 था, आपने खाली कैश को क्रेडिट किया, रेंट में लिखा ही नहीं, तो डेबिट कम हो गया 20,000 से। और दूसरा कमीशन का एरर हुआ। क्या कमीशन का एरर हुआ? सपोज आपने सेल्स किया है, कैश सेल्स 80,000 का, कैश सेल्स किया है 80,000 का, तो एंट्री होती है कैश टू सेल्स 80,000। आपने गड़बड़ कर दी, कैश में 80 लिखा लेकिन सेल्स में 60 लिखा, कैश में 80 लिखा सेल्स में 60 लिखा, तो कैश टू सेल्स टू डैश हो गया, ऐसा एरर हो गया। तो पहले एरर में डेबिट शॉर्ट हो गया 20 से, दूसरे एरर में क्रेडिट शॉर्ट हो गया 20 से। अब इंडिपेंडेंटली दे आर टू डिफरेंट एरर्स। दिस इज एन एरर ऑफ partial omission, this is an error of commission, but together if you see both the errors, what has happened, debits and credits are nullified, so trial balance will not be able to detect such errors, combined errors such that the debits and credits are nullified. Such combined two errors together they are called as compensating. Compensating कोई particular type नहीं होता। Compensating क्या होता है? There may be two partial omission errors, there may be two commission errors, there may be a combination of partial omission and commission errors. Criteria is debits and credits set off each other, nullify each other completely. Then it is set as which error? तो compensating पूछा नहीं जाता क्योंकि दो मिस्टेक्स चाहिए डेबिट क्रेडिट नलिफाई होने के लिए, तो दे नेवर आस्क. You have to play between three errors: principal, omission, commission. What are principal? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का मिक्सअप, बुक्स को ही चेंज कर डाला. कुक, दिस इज कॉल्ड कुकिंग ऑफ बुक्स या कुकिंग द बुक्स. खाना बनाते हो ना, सो बुक्स कुक करना. शो फॉल्स डेटा दैट इज शोन है, दैट इज कॉल्ड एज कुकिंग द बुक्स. इट एक्चुअली कुक्स द बुक. एंड व्हाट इज ओमिशन एरर? करना भूल गए रिकॉर्ड या पोस्ट करना भूल गए, किया ही नहीं, या तो रिकॉर्ड नहीं किया या तो पोस्ट नहीं किया. दैट्स कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन. एंड एरर ऑफ कमीशन, किया गलत किया, wrong account, wrong amount, wrong side, but it should not be a mixture of capital and credit. And compensating तो दो कोई भी error रहेगा, debit credit ना जाएगा. This is clear? So these are called as first classification types of errors: principal, commission, omission, and compensating. I just come in a minute. चलो, देन अभी सुनो ध्यान से. दूसरा एक और क्लासिफिकेशन है एरर्स का, दैट इज व्हाट. एक तो ये था एरर्स के हमने क्लासिफाई